Hello students, our new topic is reactions in liquid sulfur dioxide. द्रव सल्फर डाइऑक्साइड विलायक के रूप में, फिर उसकी रिएक्शंस। द्रव सल्फर डाइऑक्साइड अप्रोटोनिक सॉल्वेंट है लेकिन जल जैसा विलायक है, जैसे वाटर है। इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं पाया जाता। अब इसमें हाइड्रोजन नहीं पाया जाता तो इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड को आसानी से द्रवित किया जा सकता है और द्रव अवस्था में सामान्य डेवार फ्लास्क में आसानी के साथ इसे प्रिजर्व किया जा सकता है, रखा जा सकता है। कम कीमत और इजीली अवेलेबल होने के कारण इसको आसानी से काम में लिया जाता है और इसकी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के रूप में ये यूज़ किया जाता है, जिसमें ये एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। इसको सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं तो इससे पहले इसकी थोड़ी सी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना भी ज़रूरी है। सल्फर डाइऑक्साइड एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। यह बिहेवियर में अमोनिया, जो कि एक लुईस बेस है, उससे जस्ट अपोजिट है। इसका द्रव ताप रेंज जो है वो -75 से -10 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। सल्फर डाइऑक्साइड के अणु परस्पर बहुत अधिक हद तक संगुणित नहीं होते हैं, यद्यपि इसका द्विध्रुव आघूर्ण मीन्स डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। इस सॉल्वेंट के अणु में हाइड्रोजन न होने के कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड के डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान वाटर की तुलना में कम होने के कारण यह आयनिक पदार्थों की अपेक्षा सहसंयोजक पदार्थ कोवेलेंट बॉन्डेड कंपाउंड्स के लिए एक बेस्ट सॉल्वेंट है। कार्बनिक यौगों के लिए द्रव सल्फर डाइऑक्साइड एक बहुत ही अच्छा विलायक है। अब हम लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शंस को डिफरेंट कैटेगरीज में स्टडी करेंगे। उसमें मेनली हैं एसिड बेस रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शंस, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस, then solvolysis reaction, solvation reaction, and reaction with organic compound. First of all, acid base reaction. Acid base reaction में the general autoionization of liquid sulfur dioxide indicates that the thionyl ion should be an acid and the sulfide ion a base. According to Bronsted definition, the equation may be written as this: sulfur dioxide, 1 mole of sulfur dioxide is behave like acid, another mole of sulfur dioxide behave like base, give rise to SO2 plus acid pair and SO3 2 minus base pair. ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। By the analogy, thionyl chloride can be classified as an acid and cesium sulfide as a base. These two substances are soluble in liquid sulfur dioxide and react in this medium with acid-base characteristics to form cesium chloride as a salt and sulfur dioxide as a solvent. लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की एम्फोटेरिक नेचर भी होती है। बहुत सी रिएक्शंस बताती हैं कि लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड की तरह बिहेव करता है। फॉर एग्जांपल, व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड with tetramethyl ammonium sulfite, a gelatinous precipitate of aluminum sulfite is formed. ये रिएक्शन हमने यहाँ पर ये शो की है। एल्यूमिनियम क्लोराइड with tetramethyl ammonium sulfite give rise to aluminum sulfide. This is aluminum sulfide. This reaction is analogy to the following reaction. इसमें aluminium chloride reacts with sodium
hydroxide give rise to gelatinous aluminum hydroxide and NaCl. The gelatinous precipitate of aluminum sulfate goes in solution when treated immediately with an excess of the tetramethyl ammonium sulfide, just as aluminum hydroxide dissolve in an excess of sodium hydroxide solution. Next type of reaction is redox reaction. At high temperature, gaseous sulfur dioxide may behave either as an oxidizing agent or as a reducing agent depending upon the substance with which it reacts. Liquid sulfur dioxide, however, does not have any distinct oxidizing or reducing property. No oxidizing property, no reducing property, although it may serve as a medium of redox reaction. Redox reaction के लिए medium provide करता है ये. Only a few redox systems have been investigated in this solvent. The reaction between potassium iodide and antimony chloride illustrate these type of reaction. Potassium iodide reacts with antimony chloride. This is the example of redox reaction. Reduction of iodine can be carried out in liquid sulfur dioxide according to the following reaction. This reaction where M is any bivalent metal. Next reaction, next characteristic chemical reaction of liquid sulfur dioxide is precipitation reaction. Due to solubility relationship, an extensive number of precipitation can be carried out in liquid sulfur dioxide. Few examples of liquid sulfur dioxides are as follows. Reaction of barium iodide, reaction of antimony chloride, reaction of lead fluoride, reaction of aluminum chloride with sodium iodide. ये सारे एग्जाम्पल्स हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के, जिसमें देखिए एंटीमनी आयोडाइड प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है, लेड सल्फेट प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है और NaCl सॉलिड प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है. तो ये सब एग्जाम्पल्स थे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के. नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. The mode of formation of many complex ions in liquid sulfur dioxide is frequently analogous to the process occurring in aqueous solution. Complex formation occurs in two ways. दो तरीके से होता है complex formation. First, solubility of the precipitate in an excess of its own ions. इसका example है एल्यूमिनियम क्लोराइड की रिएक्शन सल्फाइड के साथ गिव राइज टू एल्यूमिनियम सल्फाइड इनसॉल्युबल. ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है. सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नॉट इन्वॉल्विंग एनी प्रेसिपिटेशन. दिस सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, इसका एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम सल्फाइड in sulfide solution give rise to aluminum sulfide ions soluble. कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में दो तरह की रिएक्शन है. एक जिसमें कि solubility of a precipitate in an excess of its own ion, ये precipitate बन रहा है. सेकेंड टाइप में precipitation नहीं हो रहा है. और another examples, antimony chloride with potassium chloride and sulfate, liquid sulfate, sulfur dioxide give rise to this complex. For more examples of complex formation in liquid sulfur dioxide as follows. पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन आयोडीन के साथ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, मरकरी आयोडाइड की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, एंटीमनी क्लोराइड की रिएक्शन NaCl के साथ
लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में। कैडमियम आयोडाइड की रिएक्शन रुबिडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड मीडियम। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड मीडियम की प्रेजेंस में इजीली इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस हो रही हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज solvolysis reaction. As explained earlier, high solubilities of salts in liquid sulfur dioxide are quite often the result of solvation. Solvolysis reactions have been obtained with certain halides. For example, PCl5 reacts with sulfur dioxide, give rise to phosphorus oxychloride and SOCl2. Some other compounds may also react similarly if heated with the solvent in a sealed tube. ये और एग्जाम्पल्स हैं जिसको कि सील ट्यूब में लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के साथ सील ट्यूब में हीट किया जाए। Whereas antimony chloride, tin tetrachloride, silicon tetrachloride are easily hydrolyzed by water and are stable in liquid sulfur dioxide. वाटर में हाइड्रोलाइज हो जाते हैं लेकिन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में ये स्टेबल रहते हैं, तो इनके लिए बेस्ट मीडियम क्या है? लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। इसलिए इनकी रिएक्शन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में होती है, जिसको हेडिंग दिया गया है सॉल्वोलिसिस रिएक्शन। नेक्स्ट इज सॉल्वेशन रिएक्शन। सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एक्ट एज ए लुईस एसिड. लुईस एसिड मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर and participates in the reaction. Most of the salts dissolving in liquid sulfur dioxide acts as Lewis base. Lewis base is electron pair donor. Sulfur dioxide reacts with many compounds to form addition compounds which are called solvate complex. For example, potassium iodide reacts with liquid sulfur dioxide to form solvate complex like this. Another example, some more solvation reactions are like that. Sodium iodide in presence of liquid sulfur dioxide give rise to solvate compound. Lithium iodide in presence of liquid sulfur dioxide give rise to this solvate compound. Aluminium chloride similarly with sulfur dioxide give rise to these solvate compounds respectively. Next is reaction of liquid sulfur dioxide with organic compounds. Liquid sulfur dioxide is a very good solvent for organic synthesis, organic synthetic reactions due to its नॉन इन्फ्लेमेबिलिटी, मतलब इसमें ज्वलनशीलता नहीं होती है, एंड इनर्टनेस टुवर्ड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ ये लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड इनर्ट रहता है, इंटरप्ट नहीं करता, कोई रिएक्शन में हिंडर नहीं डालता है. सम टिपिकल रिएक्शंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एज अ सॉल्वेंट आर एज फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मीन्स प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं. प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं का मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिसमें कि कोई मॉलिक्यूल अटैक करता है तो जो सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट में से एक मॉलिक्यूल को निकाल के उसकी जगह वो जुड़ता है. इसका बेस्ट एग्जांपल है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन. फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में जैसे बेंजीन की रिएक्शन एसाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड गिव राइज टू C6H5CH3. यहाँ पर बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकला, उसकी जगह CH3 मॉलिक्यूल जुड़ गया, मिथाइल मॉलिक्यूल जुड़ गया. अनदर एग्जाम्पल फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन. ये एग्जाम्पल लिया हमने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फ्रीडल क्राफ्ट
एसाइलेशन, बेंजीन की रिएक्शन CH3COCl से इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड गिव राइज टू एसाइल बेंजीन. Another example is चलिए अनदर एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे. यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट किया है हमने. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन किया और फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन किया. इसका नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं. थैंक यू.